हेलो स्टूडेंट, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन का जो मॉक टेस्ट मैंने आपसे किया था 1 बजे आज प्रीमियर करने के लिए। तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और जिस मेरे फ्रेंड्स को इसके आंसर पता है वो काइंडली ग्रुप में अभी चैट में रिप्लाई करें लाइव। चलिए शुरू करते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ रीजन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन फर्स्ट। What is necessary for evolution of life? Methane, ammonia, water, oxygen. Conservates are formed by option A radiation, B polymerization, C polymerization and aggregation, D DNA. Oxygen evolving organism evolved about 4600 billion year, 37 billion year, 3600, 1600 billion year. Next, conservates are colloidal droplet. V contain mycoprotein, leucoprotein. C A and B, D provide. 79 फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन। इनमें से 4 के ऑप्शन आपको बताने हैं, एक जो सही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज फाउंड बाय स्टैनले मिलर्स इन क्लासिकल एक्सपेरिमेंट? अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यूवी रेडिएशंस, माइक्रोस्फीयर। इसमें क्या करेक्ट है वो आप बताएंगे। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द possible early source of energy was carbon dioxide, chlorophyll, green plant, UV rays and lightning। कौन सा इसमें बताना है। रशियन साइंटिस्ट who proposed the theory of origin of life। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है, टिक करके बताएंगे। अर्लीस्ट हॉट एटमोसफियर ऑफ अर्थ कंटेन। स्टार्टिंग एटमोसफियर में क्या था, ऑप्शन ए बी सी डी। क्या है इसमें अभी आप टिक करके बताएंगे। टर्म प्रोटोबायोजेनेसिस is used for the theory of biochemical origin, panspermia, spontaneous generation, special creation। Next, finding of the Miller experiment on the origin of life has provided the evidence for theory of special creation, theory of organic evolution, theory of biogenesis, theory of abiogenesis। So ये थे questions from origin of life। Second is the evidences of evolutions। Oldest fossil record in India is of blue-green alga which is 2.9 billion year ago। क्या है इस फॉसिल का नाम, आप बताएंगे यहाँ से टिक करके। नेक्स्ट, द प्रिजर्व फॉसिल मेन ऑफ आर्कियोप्टेरिक शो डैट इट वाज फ्लाइंग reptile in Triassic period। reptile gave rise to bird during Jurassic period। it was flying reptile from Permian period। reptile gave rise to first during the Permian period। नेक्स्ट, डोमिनेंट एनिमल ऑफ मिसोजोइक एरिया वाज। कौन से हैं, टिक करेंगे। मिसोजोइक एरिया में क्या डोमिनेंट एनिमल था। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक। सेडिमेंटेशन, मेटामॉर्फिक, इग्नस, नन ऑफ दीज। विंग्स ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्फ फोर्स। होमोलॉगस, एनालॉगस, वेस्टिजियल, जिसके ऊपर कल हमने काफ़ी चर्चा की थी। बताइए क्या आंसर है। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो हैं इन सर्टेन ट्रेट एक्सप्रेस convergent evolution, divergent evolution, parallel evolution and none of these। Fossilization would occur when the flora and fauna are buried by natural process, industrial process, A and B, all of these। Next is the sweet potato and potato are example of homologous, analogous और vestigial। ये भी NCERT का क्वेश्चन है। Presence of the tail in the human baby, vestigial organ, adaptive radiation, natural selection, atavism। Cenozoic era is age of mammal, age of reptile, age of amphibian, age of fishes। Next we have the theories of evolution। The book जो है philosophy zoology की was written by, किसने लिखी थी, इसमें आंसर आप बताएंगे। डार्विन in the theory of natural selection stated। क्या स्टेटमेंट थी डार्विन की। Character acquired during the life individual inherited by spring। Environment does not play a role in evolution। Natural selection act of favorable variation which appear among the division of species। Heritable variation arise through changes in gene complex organism। जो टिक आंसर सही है वो बताइए। Theory of natural selection explain which of the following? Vestigial organ, overspecialization, discontinued variation, survival of fittest। Darwin was influence of reading essay of। इनमें से क्या है वो आप बताएंगे। डार्विन ने किसके ऊपर ट्रैवल किया था। गैलापागोस आइलैंड एसोसिएटेड नेम किसके नाम के साथ एसोसिएटेड है, इनमें से साइंटिस्ट का नाम बताइए। थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन इज ऑब्जेक्टेड बिकॉज। नेचुरल सिलेक्शन के क्या ड्रॉबैक हैं।
stress upon the slow and small variation, explain the adaptation of certain inherited character, stress on the interspecific competition, explain that the natural calamity take in the heavy annual toll of lives. The concept of inheritance of quiet character developed by Aristotle, Bisman, Lamarck, चार्ल्स डार्विन. क्या आंसर है वो बताइए. अकॉर्डिंग टू द न्यू डार्विनिज्म थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजन ऑफ न्यू स्पीसीज. न्यू स्पीसीज किससे बनती है? म्यूटेशन से, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शन. फॉर द नेचुरल सिलेक्शन द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज disuse, special creation, catastrophe, variation. Lamarck theory of evolution was based on natural selection, claimed that the heredity could be modified, claimed that the giraffe had long neck, did not account for fossil. क्या आंसर है? In case of evolution, which of the following statement is not correct? Fossilized animal provide important information to trace evolution. Wing of bird and forelimb of cow are homologous. In higher animal, early development stages are similar. Variation among the individual are not important in natural selection. मेन पॉइंट क्या है डार्विन थ्योरी का? वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, एनॉर्मस फर्टिलिटी, म्यूटेशन. कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है किस सन में दिया गया था? 1859, 1858, 1839, 1836. According to the Darwinism, the fossil of the organism found in South America resemble most fossil North America, Africa, Australia, or D option. Which of following is not explained by Lamarckism? Elongation of neck of giraffe, loss of tail in the human being, break progeny of the novel literature, none of these. Plant and animal of Galapagos Island resemble most closely in the plant and animal of North America, South America, North Africa, South Africa. क्या है बताइए. Mutation normally happen randomly are considered one of the raw material for evolution because they are stable, contribute to new variation, cause death of organism, none of above. साल्टेशन टर्म किसने दी थी? मेंडल ने, डिवेरिस ने, चार्ल्स या लेमार्क ने. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, स्पीसीज और जीनस. क्या आंसर है बताइए. सो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्पेशिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पिछले हमने कर लिए. स्पेशिएशन में जोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन. क्या जरूरी होता है? जेनेटिक वेरिएशन अराइज बाय न्यूक्लियोलस, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन और बी एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन जो है आइडिया फंडामेंटल प्रोसेस है वाज रीच्ड independently by Charles Darwin and Alfred Russell in 1990, Charles Darwin 1866, Alfred Russell 1901, independently by Charles and Russell in 1859. क्या आंसर है? इंडस्ट्रियल मैनलिज्म क्या है? इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, एविडेंस फॉर सर्वाइवल ऑफ फिटस, एविडेंस फॉर फेवर ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. Higher frequency of the melanin in the British moth and the DDT resistance in mosquito example of natural selection, point mutation, survival of fittest and genetic drift. क्या आंसर है? The change of the light colored variety of the peppered moth, Bistona betullaria, and darker variety Biston carbonaria due to क्या इसके कारण है? जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का ही क्वेश्चन है. जेनेटिक आइसोलेशन, म्यूटेशन, टेम्पोरल आइसोलेशन और रीजनरेशन. बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ जो स्पीसीज़ है क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड बी एंड सी. क्या आंसर है बताइए. टू स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम और ओवरलैपिंग एरियाज कॉल्ड सिम्पार्टिक, एलोपार्टिक, पैरापार्टिक, रिंग स्पीसीज. कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट किसने दिया था? सेबल राइट ने, हार्डी वेनबर ने, जूलियन हक्सले ने या जी सिम्पसन ने. नेक्स्ट है क्वेश्चन जो हार्डी वेनबर लॉ से हैं. चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन द पॉपुलेशन रिजल्ट इन एवोल्यूशन प्रपोज्ड इन डार्विन थ्योरी, लेमार्क थ्योरी, हार्डी वेनबर प्रिंसिपल और डी वेरिस. नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेसेस अफेक्ट द हार्डी वेनबर इन इक्विलिब्रियम?
म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, ऑल ऑफ दीज। ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था कल प्रीमियर में। Hardy-Weinberg principle cannot operate if population is large, frequent mutation occur in population has no chance of interaction with other population, free inbreeding occur in all the member। क्या सही आंसर है बताइए। If we are allele of D and D frequency P and Q according to Hardy-Weinberg equation, D and small d की क्या आएगी ये बताइए। ये स्टेटमेंट्स हैं, इसका आपने आंसर बताना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज इन द जीन फ्रिक्वेंसी इन पॉपुलेशन, हैंस इट फॉर्म द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवोल्यूशन। स्टेटमेंट 2 है स्मॉलर पॉपुलेशन हैव ग्रेटर चांस ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन दो स्टेटमेंट्स का क्या नतीजा है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। बोथ आर ट्रू बट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। 1 is true, 2 is false, both are false। क्या इसका आंसर है जी, आप पढ़िए, इसको ध्यान से फोकस करके समझिए फिर बताइए। ये मॉडर्न कंसेप्ट का क्वेश्चन है, उसमें से आप निकाल के देख सकते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो मैंने आपको कहा था अभी फ्रेंड्स रिवाइज कर लीजिए टॉपिक। आज हम एवोल्यूशन का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जो आपका एक्सपेरिमेंटल वीडियो है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगा 1 PM पे। तो जब तक लॉकडाउन है या अवेलेबल हूँ आपके लिए, तो आपको ये अच्छा एक फैसिलिटी मिल रही है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए इसमें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द जीन इन पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, जीन म्यूटेशन और ऑल। सही आंसर बताइए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के क्या स्टेजेस हैं बताइए। ये ह्यूमन एवोल्यूशन में मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, वो आप याद कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। इरेक्टस, स्टेरियोपैथिकस, निएंडरथल मैन, कोग्रन मैन, मॉडर्न मैन। बाकी देखिए क्या क्या इसके आंसर हैं, जो आपको सही लगता है वो बताइए। इन विच प्री हिस्टोरिक मैन द पीरियड वाज प्रॉपर वर्चुअल डेड बॉडी स्टार्टेड। डेड बॉडी को कैसे दफनाने का कब स्टार्ट हुआ। जावा में, क्रो-मैग्नन में, पैकिंग में, नेचुरल में। होमिनिड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग मियोसिन, प्लियोसिन, लिगोसिन, पैलियोसिन। क्रेनियल कैपेसिटी वाज लार्जेस्ट इन, किसकी क्रेनियल कैपेसिटी इनमें ज़्यादा है। पैकिंग, जावा, अफ्रीकन या निएंडरथल की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। होमो इरेक्टस प्रोसीडेड बाय होमो हैबिलिस, निएंडरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन वर लिविंग इन सेम टाइम, स्टेरियोपैथिकस वर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, नन ऑफ अबव। क्या इसका आंसर है बताइए। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेरियोपैथिकस इज रियल एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, Neanderthal is direct ancestor of Homo sapien, Erectus is ancestor of man, Cro-Magnon is fossil have been found in Ethiopia। क्या आंसर है बताइए। Which of following isotope is most dangerous in Homo sapien। Homo sapien में क्या है। Cesium 137, Phosphorus 30, Iodine 31, Strontium 90। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या है मैन का। कैट, काऊ, डॉग, हॉर्स। लीस्ट क्रेनियल कैपेसिटी इनमें से किसकी है। क्रो-मैग्नन, जावा, निएंडरथल या मॉडर्न मैन की। करेक्टर क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन एवोल्यूशन इज डिस्पेरेंस ऑफ द टेल, रिडक्शन इन साइज ऑफ जॉ, बाइनोकुलर विजन एंड फ्लैट नेल। बाईपेडल लोकोमोशन इज एडवांटेज, क्या है इसका एडवांटेज। स्पीड बढ़ती है, रिड्यूस इन बॉडी वेट, प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू बॉडी, रिलीज फॉर लिम्ब फॉर अदर पर्पस। Pithecanthropus erectus fossil was found in Java, China, Japan and Texas। Which fossil man has been known from Shivalik Hill in India। Sinanthropus, Ramapithecus, Thalassemacus and Gigantopithecus। The modern man differ from the apes, absence of tail, sparse body hair, broadened chest due to flattening of sternum, arm shorter than leg। Bronchioles are ancestor of ape only, man only, both ape and man and none of these। Percentage of similarity in the beta chain of hemoglobin and rhesus monkey 2%, 4%, 8%, 40%। Extant human ancestor who ate only fruit and hunted with stone weapon was Ramapithecus, Stereopithecus, Dryopithecus, Homo erectus। First was the most significant trend in the evolution of modern man। Upright posture, shortening of yaw, binocular vision, increasing brain capacity। क्या हुआ था सबसे ज़्यादा।
और फ़ायदा क्या चेंज इसका हुआ है होमो एवोल्यूशन में, मॉडर्न मैन में क्या अच्छा है जो बाकियों में नहीं था। क्रो मैग्नन वाज फर्स्ट फ्रूगीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जावा एपमैन? पिथेंथ्रोपस रेक्टस, पिथेंथ्रोपस ब्रैक्रेंसिस, होमो रोडियंसियंसिस, होमो हेलिडीग्रेंसिस। तो ये था आपका मॉक टेस्ट, और काइंडली आप आंसर बताइए। जिन्होंने आंसर बताए हैं मैं अभी देखता हूँ, आपको बताता हूँ करेक्ट क्या है। तो आपको थोड़ी देर बाद प्रीटी ग्रुप में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।